Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering branch from the college affiliated to AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In our previous lecture we have discussed about the various properties of psychometry, various psychometric properties and various psychometric processes. Today further I am going to have a discussion regarding the various psychometric processes in detail. If we talk about the sensible cooling is basically the process in which the dry bulb temperature of the air decreases with the constant volume of with the constant value of specific humidity or moisture content. That means, if the air is cooled in such a way that its dry bulb temperature decreases with the constant value with the constant value of moisture content or specific humidity, that kind of process is known as sensible cooling. Now, how we are going to achieve it? How we are going to achieve it experimentally? Air undergoes sensible cooling whenever it passes over the surface that is at the temperature less than the dry bulb temperature. That means, basically we are going to have a cooling effect over here. That means, we are going to cool air. Suppose this one is the air inlet, 2 is the air at outlet. We have to decrease the temperature of this air we have to decrease the temperature of this air. Now, what we are going to do? We have to employ a cooling coil over here, as in case of heating, sensible heating, we have employed heating coil. In the same we have to employ a cooling coil over here, so that the cooling process is achieved. Now, if we talk about the psychometric chart, how we are going to represent the sensible cooling over in psychometric chart. So, as we know that in case of sensible cooling, the dry bulb temperature decreases, the dry bulb temperature of the air decreases. Now, if the dry bulb temperature of the air decreases, that means the arrow will go like this. That means, the temperature decreases, and as we know that the dry bulb temperature decreases in negative x direction. If we move toward negative direction, then in that condition we see that the dry bulb temperature decreases. In that condition, we can simply place the arrow in this direction, so that the dry bulb temperature decreases. Now, the second point is we have to maintain the value of W constant. That means, we have to maintain the moisture content constant, we have to maintain the value of specific humidity to be constant, or this W is equal to constant. In this way, we have to draw a line, a straight horizontal line, because the value of W along this line is constant. So, exactly what we are what final line we are getting for this sensible cooling process in psychometric chart is straight horizontal line moving toward negative x direction. That means, सेंसिबल कूलिंग को साइकोमेट्रिक चार्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे मूविंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जिसका एरो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लगेगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारा एरो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ड्रॉ किया है। अब वी हैव टू cool this air, we have to decrease the temperature of air 1. Now, what we are going to do? Cooling coils are there. Cooling coils में होगा क्या? इसका टेम्परेचर जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इसका टेम्परेचर हमें इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर the temperature less than the dry bulb temperature of the air but greater than the dew point temperature. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। होगा क्या कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट से ऊपर रखना है हमको, ड्यू पॉइंट से ऊपर रखना है। क्यों? अगर ड्यू पॉइंट के ऊपर से नहीं रखेंगे, अगर हम ड्यू पॉइंट से नीचे उसका टेम्परेचर कर देंगे, कूलिंग टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा, तो होगा क्या कि मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा वो कम हो जाएगा। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होते चले जाएंगे, ड्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। उस कंडीशन में होगा क्या, हमारे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो घट जाएगी या चेंज हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू को कांस्टेंट बना के रखना है, यानी कंडेंसेशन को नहीं होने देना है। यानी कूलिंग इस तरीके से करनी है कि कंडेंसेशन वहाँ पे ना हो। तो कंडेंसेशन ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा कि ये एयर के ड्यू पॉइंट से नीचे ना आए। जैसे ही नीचे आएगा वैसे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और W की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यानी जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है वो एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमें ऊपर रखना है, ताकि किसी तरीके का यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस पॉसिबल ना हो, यानी कंडेंसेशन यहाँ पे ना हो और W की वैल्यू चेंज ना हो, यानी W की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहे। इसीलिए जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है वो इतना रखते हैं कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे ऊपर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा बहुत समझने वाली बात है कि इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं करना है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम हो जाए वो, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर रखना है ताकि W की वैल्यू चेंज ना होने पाए। अब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जितना हमें चाहिए, टेम्परेचर मान लीजिए T2 टेम्परेचर चाहिए हमको, तो जाहिर सी बात है हमें कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर और नीचे रखना पड़ेगा, ताकि लॉसेस वगैरह को कंसिडर करते हुए उसका टेम्परेचर 2 से भी कम रखना पड़ेगा। तभी जो एयर है वो कॉइल के ऊपर से जब फ्लो करेगी तो वहाँ पर हमें कूलिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। यानी जैसे एयर यहाँ से फ्लो करेगी, वी आर हैविंग द कूलिंग इफेक्ट, द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, the certain amount of heat is being rejected from the system, and the temperature of the air decreases and the dry bulb temperature decreases with the constant value of specific humidity. In this way we can say that the sensible cooling is achieved. यानी यहाँ पर जैसे ही ये एयर फ्लो करेगी इसका कूलिंग कॉइल के ऊपर से, यहाँ से जैसे ही एयर फ्लो करेगी इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से, टेम्परेचर कम होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिजेक्ट होगी और हम कहीं कहेंगे कि सेंसिबल कूलिंग इज बीइंग अचीव। और जो भी यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है उसको हम कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे H के फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं और भी पैरामीटर्स किस तरीके से चेंज होते हैं साइकोमेट्री में, अगर हम लोग सेंसिबल कूलिंग करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एरो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, एक पैरामीटर हमारा कांस्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी TdB की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है, यानी सेंसिबल कूलिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा ही करेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की हमारी वैल्यू कांस्टेंट होगी ही होगी। एंथैल्पी देख रहे हैं यहाँ पे H1 से H2 यानी नीचे की तरफ आ रही है, यानी घट रही है हमारी, यानी इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस द एंथैल्पी डिक्रीजेज, दैट मीन्स इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस एंथैल्पी डिक्रीजेज। अगर हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो ये कांस्टेंट होगा इस पॉइंट पे। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे इस पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी पर चेंज होगी, वो साइकोमेट्री चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू उसकी चेंज होती चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सेंसिबल कूलिंग क्या होती है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइकोमेट्री चार्ट में, और कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको अचीव करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज। That means it is the process in which only the specific humidity increases with the constant value of dry bulb temperature. That kind of process is known as humidification process. Now, अगर हम लोग बात करें साइकोमेट्री चार्ट में, how we are going to represent this humidification process on psychometry chart, हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली साइकोमेट्री चार्ट है।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमको बढ़ाना है, यानी मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाना है, यानी एक ऐसा एयर हम लोग लेंगे जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है एट द कांस्टेंट ड्राई टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ड्राई टेम्परेचर, उस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बढ़ानी है, हमको मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना है, यानी कुछ ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, एरो उसका ऊपर की तरफ होगा, 1 से 2 प्रोसेस, यानी 1 से 2 की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि W की वैल्यू W1 थी, यहाँ पे W2 थी, इस तरफ वैल्यू W की बढ़ती है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ेगी एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हम लोग यहाँ पे देखें ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, 1 पे भी वही है, 2 पे भी वही है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को बेसिकली स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमारी बढ़ रही है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। इन दिस वे वी कैन से दैट इन केस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर हम लोग यहाँ पर भी बात करें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इसको इस तरफ से देखेंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुछ और होगा, इसको यहाँ पे देखेंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा, यानी चेंज होगा। तो जैसे भी चेंज होगा यानी जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे हम लोग उसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में W की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, और फाई RH की वैल्यू या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ह्यूमिडिफिकेशन का उल्टा, डिह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट विद द डिक्रीज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी ऐसी एयर जिसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इन दैट कंडीशन वी कैन से द प्रोसेस इज डिह्यूमिडिफिकेशन। दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस, this is the process in which the moisture content decreases with the constant volume of with the constant value of dry bulb temperature. If we represent this process on psychrometry chart, then we are getting the line like this, the straight vertical downward direction line. यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे W1, इसको 1 लें, इसको 2 लें, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है, डिक्रीज कर रही है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, यानी जो वेपर है वो कंडेंस हो रहा है, यानी हमारा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 पे भी वही है, 2 पे भी वही है, तो बेसिकली यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना हुआ है। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच the specific humidity decreases with the constant value of dry bulb temperature. अगर हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल लेंगे, कुछ और आएगा, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे, कुछ और आएगा, इसकी वैल्यू नीचे की तरफ घट रही है, तो हम लोग सिंपली कहेंगे इन डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीजेस। कूलिंग एंड dehumidification. This is the process in which the cooling as well as dehumidification process both occur. That means the process in which the dry bulb temperature decreases along with the decrease in specific humidity. The process in which the dry bulb temperature of the air decreases with the decrease in specific humidity, that kind of process is known as the cooling एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कूलिंग भी हो रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, दोनों की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज कर रही है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। द मॉइस्चर कंटेंट इज रिमूव्ड विद द कूलिंग, यानी ड्राई बल्ब अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है यानी मॉइस्चर कंटेंट हमारा रिमूव्ड हो रहा है उस पर्टिकुलर एयर से। Whenever air is
made to pass over the surface or through a spray of water that is at a temperature less than the dew point temperature of the air. Condensation of some of the water vapor in air will occur simultaneously with the sensible cooling process. यानी यहाँ पर कॉयल के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से कम रखा जाता है, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखा जाता है। क्यों? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कॉयल के टेम्परेचर को हमें कम करना है और इतना कम करना है कि इसके एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। जाहिर सी बात है, एयर ऐसे सरफेस से अगर हो करके अगर गुजरे जिसका टेम्परेचर उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, तो उस कंडीशन में ही हमें कंडेंसेशन प्रोसेस पॉसिबल होगा। यानी डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जो कॉयल का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं। इसके पहले भी डिस्कशन किया है हम लोगों ने इसके बारे में। तो यानी अगर कॉयल का टेम्परेचर इसके एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है, जब कम होगा तभी यहाँ पे कंडेंसेशन पॉसिबल होगा, यानी डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस पॉसिबल होगा। और जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर कम है यानी कूलिंग प्रोसेस होगी ही होगी। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बेसिकली वी हैव टू कीप द टेम्परेचर ऑफ दिस कूलिंग कॉयल लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर, ताकि जो कंडेंसेशन है वो पॉसिबल हो सके। अगर हम लोग बात करेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि ये लाइन, इस लाइन में इस लाइन जो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है, यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू एरो इस तरफ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा घट रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा इस तरफ घट रहा है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ पे W1 वैल्यू थी, यहाँ पर W2 वैल्यू हो गई। 1 से 2 की तरफ भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी घट रही है, मॉइस्चर कंटेंट हमारा घट रहा है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, यानी कंडेंसेशन जो है वो हमारा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो कॉइल का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। यानी इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे दिस इज कूलिंग and dehumidification process, because the temperature, the dry bulb temperature of the air decreases, cooling हो रहा है, specific humidity decrease हो रही है यानी dehumidification हो रहा है। यानी ये दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, यानी यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे साइकोमेट्री चार्ट में। अगर हम लोग बात करें रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स के कैसे चेंज होते हैं, तो हम लोग देखेंगे 1 पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 2 है, 4 पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुछ है, यानी 2 से लेकर के यहाँ तक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू हमारी घटेगी। यानी यहाँ पर कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारा कम होता है। अगर हम एंथैल्पी के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर एंथैल्पी H1 है, यहाँ पर एंथैल्पी H4 है। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में एंथैल्पी हमारी घट रही है, यानी जो हीट कंटेंट है हमारा वो घट रहा है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है साइकोमेट्री चार्ट में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जैक्टली कैसे कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, एयर यहाँ पे इनलेट कर रही है इन कूलिंग कॉइल्स में। ये हमारे कूलिंग कॉइल्स हैं जिसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। जैसे ही एयर यहाँ से होकर के गुजरेगी, द 4 पॉइंट पे जो हमें एयर मिलेगी दैट विल बी एट लो टेम्परेचर with respect to the point 1 and with कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन भी होगा, यानी एयर में जो वाटर कंटेंट है वो हमारे डिक्रीज होंगे, यानी वाटर कंडेंसेशन प्रोसेस होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट हमारा घटेगा, जो भी हमारे सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो रिमूव्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। यानी जो हमें यहाँ पर जो एयर मिलेगी वो डिह्यूमिडिफिकेटेड एयर और कूल्ड एयर मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 1। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है। Cooling and humidification, this is the process in which the dry bulb temperature decreases. This is the process in which the dry bulb temperature decreases with the increase in moisture content. यानी कूलिंग भी हो ह्यूमिडिफिकेशन भी हो। कूलिंग कब होगी? जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा। द कूलिंग विल अकर ओनली इफ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज
and humidification will occur only if the specific humidity increases. So on अगर साइकोमेट्री के चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो किस तरह की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज करे और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करें। यानी अगर एक इंक्लाइंड लाइन हम ड्रॉ करें 1 से 2 प्रोसेस के लिए तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 पे W1 है, यहाँ पे W2 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, द काइंड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन इज अचीव, दैट मीन्स this is the process in which specific humidity increases and which if the specific humidity increases the moisture content will increases, and this way we can say the humidification process is achieved. Now if you are talking about the cooling process, now we can see that from here to here the dry bulb temperature of the air decreases. Dry bulb temperature यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ इस तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं then in negative x direction the dry bulb temperature of the air decreases. In this way we can say that this is the process in which the dry bulb temperature of the air decreases. Now the cooling is achieved. If the cooling is achieved, we can say the both collectively we can say the kind of process what we are getting over here from 1 to 2, that is equal to the cooling and humidification process. यानी cooling भी हो रही है साथ में ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी हो रहा है। अगर इसको इस तरीके से लाइन अगर पैरेलल लाइन एंथैल्पी लाइन के अगर हम लोग बनाएं पैरेलल, इस लाइन को अगर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के पैरेलली अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि H1 की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी एंथैल्पी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट है और यहाँ पे किसी भी तरीके का हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस जो रिप्रेजेंट किया गया है हम लोग ये कहेंगे दिस इज कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अगर हम लोग बाकी पैरामीटर्स की हम लोग बात करें कि बाकी पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज होता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इतना होगा, इस तरफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो वी कैन सिंपली से दैट इन केस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेज। हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, अगर हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की हम लोग बात करें, सो दिस इज द प्रोसेस इन विच द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज सो दैट द हीटिंग इज अचीव, एंड दिस इज द प्रोसेस इन विच द डिह्यूमिडिफिकेशन इज देयर, दैट मीन्स द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करें और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करना चाहिए एयर का। तो ये दोनों कलेक्टिवली जो प्रोसेस होंगे दिस इज नोन एज हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सो अगर हम लोग collectively बोलें, so this is the process in which the dry bulb temperature of the air increases with the decrease in specific humidity or with the decrease in moisture content of the air. अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें साइकोमेट्री चार्ट में तो हम लोग देखेंगे कि लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है। हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज कर रही है, यानी मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी द काइंड ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इज देयर। डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा यानी इसका मतलब कि यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस पॉसिबल है, यानी कंडेंसेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट हमारा घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी घट रही है, जो एयर के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो हमारा घट रहा है। इसलिए W1 की वैल्यू ज़्यादा है W2 से और W1 से W2 की तरह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। इफ़ वी टॉक अबाउट द चेंज इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देन वी विल फाइंड the temperature is changing from here to here, that means in this direction. In this direction, as we know, in positive x direction the dry bulb temperature of the air increases. So we can say that here the kind of heating is achieved in which the dry bulb temperature of the air increases. So collectively we can say the process in which the specific humidity decreases with the increase in dry bulb temperature of the air, that kind of process is known as heating and dehumidification. The process in which the air is heated at the same time the moisture is removed from it is called as heating and dehumidification process. Heating and humidification, simply heating and humidification is the process in which the heating as well as humidification both are there. That means the process in which the dry bulb temperature of the air increases along with the increase in specific humidity of the air. In that condition we can say the kind of heating along with humidification process is achieved. I am repeating, the process in which
the dry bulb temperature of the air increases. The dry bulb temperature of the air increases with the increase in specific humidity of the air. In that condition, we can say that heating along with humidification process is achieved. If we talk in terms of psychrometric process, how we are going to represent the heating and humidification process on psychrometry chart, we are simply drawing the straight inclined line from 1 to point 2. Now, from at point 1 the specific humidity is this one W1, at point 2 the specific humidity is W2. From here to here we can say that specific humidity increases because it will increase in upward direction. If the specific humidity increases, we can say the kind of humidification process is achieved. So, this is the humidification process. Now, if we talk about in terms of dry bulb temperature, now we see that the dry bulb temperature from here to here increases in positive x direction, So, we can say that the kind of heating is achieved. In this way, we can say this is the process in which the dry bulb temperature of the air increases with the increase in specific humidity of the air. So, in this way we can define the process of heating and humidification. So, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस, हीटिंग हुमिडिफिकेशन, डिहुमिडिफिकेशन, कूलिंग डिहुमिडिफिकेशन, जो साइकोमेट्रिक वेरियस प्रोसेस हैं किस तरीके से प्रोसीड होते हैं, उनमें कैलकुलेशन कैसी होती है, साइकोमेट्री चार्ट में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे साइकोमेट्री प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेफ्रिजरेशन पार्ट के बारे में, कैसे रेफ्रिजरेशन होता है, कौन कौन से साइकिल्स होती हैं रेफ्रिजरेशन में, कैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, COP क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।